Hello everyone. Once again, welcome back to the online class. Today, I am going to explain the further portion of this chapter, the 100 races. Part first is going on, and we are in the second part of this special chapter. As for Maddie, okay, we were discussing about Peggy and Maddie. They kept waiting for Wanda Petronsky to move towards the school along with her, and yes, Wanda Petronsky. She was a Polish girl, and eventually, in the previous video, we discussed about Peggy and Maddie and their characters as well. Peggy was not a cruel girl. She protected small children from bullies. Means bullies those who use their strength or power to frighten weaker people. Okay, means criminals you can say, wicked people. Peggy tries to protect small children from bullies, from those people. Small children, if she feels the compassion of small children and presence of theirs anywhere else, and they were being cheated or you can say kidnapped by bullies or other people, so she stands herself there and tries to protect the small children, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Okay, she cries means she was a very kind hearted lady for the animals. She has a great emotion and affection for the animals. Whenever she tries sorry whenever she sees an animal to be treated badly, she cries ours. And if anybody had said to her, कोई भी उससे कह दिया, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? She would have been very surprised. Cruel? What? What are you saying? I'm not a cruel. When somebody says that, you make fun of Wanda Petronsky, you make so many questions to her, so it is cruelty. Okay, you are not polite for Wanda Petronsky. So she, expresses surprise. Cruel? निर्दयी मैं cruel नहीं हूँ. Why did the girl say she had 100 dresses? Why does she say that she has 100 of dresses but she wears only a single faded blue color? Anybody could tell that was a lie. Anybody can say, anybody can understand that she speaks lie. वो झूठ बोलती है. Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलती है? And she was not just an ordinary person. She is not an ordinary person. She is not a simple. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. कभी भी वांडा पेट्रॉन्स्की उनकी वजह से रोई नहीं थी. पेगी एंड मैडी दे नेवर मेड वांडा पेट्रॉन्स्की क्राई. वो कभी उसको रोने नहीं देते थे. और उनका आई मीन वांडा पेट्रॉन्स्की का इतना मजाक नहीं उड़ाते थे, इतना परेशान नहीं करते थे. दे डिड नॉट बोदर हर लॉट so that she would be crying, okay, because of Peggy and Maddie. But what was the problem? That she tells them that she has 100 of dresses, and it was lie. It was very simple and easy to understand, but it was a reply on behalf of imagination by Wanda Petronsky. The 100 dresses chapter. Now, as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, cap, okay, dresses, I mean, it has become a business. It, and how many this and that she had was bothering her. Okay, how many this, how many that, watching and asking so many questions like that. She was bothering Wanda Petronsky. Mary was a poor herself. Mary भी बहुत poor थी, बहुत बेचारी थी. She usually wore someone's hand me down clothes. और वो भी दूसरे का ही कपड़ा पहना करती थी. Mary was a poor. Okay, she always or usually wore somebody's hand me down clothes. Hand me down means lended, किसी के द्वारा दिया गया, किसी के द्वारा मांगा गया, ऑफर किया हुआ कपड़ा. जो होता है ना कि कुछ लोग कपड़े पहनते हैं, एंड
they offer it somebody else after wearing for some months, कुछ महीने या कुछ साल पहनने के बाद जब उनको लगता है कि ये पुराना हो गया है तो वो उनको दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। थैंक्स गॉडनेस she didn't live up on Boggin's height or have a funny name. वो कहती है thanks God that I do not belong from Boggin's height where uh, Wanda Petronsky belongs from, जहाँ पे belongs to, जहाँ पे वो belong करती थी, जहाँ से वहाँ से वो belong नहीं करती, इसके लिए वो thank God बोलती है कि मैं भी अगर वहाँ से belong करती तो ऐसा ही कुछ नाम होता है मेरा। हाँ आगे, sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Mary felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Sometimes, kabhi kabhi, when Peggy was asking Wanda those questions like how many dresses do you have, how many hats do you have, how many pair of shoes do you have in your closet, then Maddie felt embarrassed. Maddie doesn't feel better when Peggy asks questions to Wanda Petronsky. She studied. Maddie doesn't react anything supporting Peggy. She studies. वो पढ़ती थी and marbles in the palm of her hand. Okay, she takes collect some marbles. गोटियां अपने हाथ में रखती थी. She looks at the marbles. वो marbles के तरफ देखती थी. It seems that she is studying about the number of marbles in her hand and rolling them around and saying nothing herself. I mean, she doesn't speak a single word. Even Peggy speaks too much and she asks so many questions to Wanda Petronsky. But Maddie was her friend and she never and ever asks any question to Wanda Petronsky. Not that she felt sorry for Wanda. Maddie feels sorry for Wanda. I mean, she could understand about that poor little girl. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. Exactly about the intention of Maddie, she never pays attention at Wanda Petronsky if Peggy doesn't develop, invent a game of 100 dresses game. क्वेश्चन पूछना, बार बार कपड़ों के बारे में क्वेश्चन पूछना, इस तरह की गेम अगर पैगी डेवलप नहीं करती तो मैडी का कोई इंटेंशन नहीं था वांडा पेट्रन्स्की से बात करना और न ही उससे कोई क्वेश्चन करना। अब आगे देखते हैं। But suppose Peggy and all the others started in on her next. I hope everybody would be paying attention on their textbook, each line and each word where I am reading. जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान दे रहे होंगे। But suppose Peggy and all the others started in on her next. हो सकता है पेगी के बाद दूसरे लोग उससे क्वेश्चन करना शुरू करें, दूसरे लोग उसको परेशान करना शुरू करें। She was not as poor as Wanda. वांडा की तरह वो पुअर नहीं थी, परहैप्स शायद, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स मैडी हैड more sense than Wanda Petronsky has, okay, for saying 100 dresses. I have 100 dresses. मानते हैं कि कोई आदमी गरीब है, लेकिन वो अपनी गरीबी, अपने पॉवर्टी को एक्सेप्टेंस में ला रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है that I am a poor, okay, I do not have money, I do not have many clothes. But what about that people, who do not have money, who is wearing very rag dresses, and even he says that I have 100 of dresses, 50 of dresses, and a Fortuner car over there, I have a good well constructed house as well, but she lives in a hut, वो एक झोपड़ी में रहता है। सो थोड़ा सा ये है जो कि मैडी के पास नहीं था, इस तरह की विचारधारा उसके अंदर नहीं थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। और मैडी जो है वो नहीं पसंद करती है कि वांडा से इस तरह से लोग बात करते हैं। होता है कभी कभी ऐसा, हम दोस्ताना में या रिलेशंस को लेकर के मजबूर होते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त किसी का मजाक उड़ाया, किसी को परेशान कर रहा है, इंटरनली हमको लगेगा कि मेरा दोस्त गलत कर रहा है,
बट हम उसको मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही था मैडी के साथ। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की। मैडी की जो इच्छा थी वो यही थी कि पैगी इसको परेशान करना छोड़ दे, इससे मत पूछा करे। अगर वांडा पेट्रॉन्स्की इज फीलिंग नॉट बेटर, ओके, इफ वांडा पेट्रॉन्स्की डजंट फील बेटर आफ्टर बीइंग क्वेश्चनड, सो पैगी शुड स्टॉप दिस गेम। पैगी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी डिजायर थी, ऐसा सोचना था मैडी का। आगे चलते हैं। इन बिटवीन these paragraphs oral comprehension has been given. In what ways was Wanda different from other children? किस तरह से वांडा दूसरे बच्चों से different थी? So it's very simple that she was a Polish girl. She kept wearing only a faded blue, and she was very quiet girl. She was introvert, you can say. She doesn't want to make any friendship with anybody else. She doesn't want to have more and more talk with others. तो ये चीज़ें थी जो कि वो डिफरेंट थी, कलर भी उसका डिफरेंट था, लैंग्वेज भी उसकी डिफरेंट थी, ठीक है। अब डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या उसके पास 100 ड्रेसेस थे? तो ये क्वेश्चन तो आप अभी फिलहाल में नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली शी डजंट हैव 100 ड्रेसेस। उसके पास इस तरह का कोई मतलब वो कलेक्शन नहीं था। व्हाई डू यू थिंक शी सैड शी डिड, ऐसा वो क्यों कहती थी, ठीक है, कि उसके पास 100 कपड़े हैं, 100 कपड़े हैं, 60 पेयर्स शूज़ हैं और सारे सजा कर रखे हुए हैं, ऐसा वो क्यों कहती थी? तो कहीं ना कहीं वो अपनी कल्पना पे आधारित जवाब देती थी, कोई कल्पना उसके दिमाग में चल रही थी जिसके आधार पर वो प्रश्नों का उत्तर देती थी, और उससे सिर्फ यही प्रश्न किया जाता था। शी वॉज ओनली गिवन अ सिंगल क्वेश्चन दैट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? तो वो सिंपली रिप्लाई करती थी 100, ठीक है, कि मेरे पास 100 कपड़े हैं। तो ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है, उसके पास वाकई 100 कपड़े नहीं थे। आगे मैं आपको बता दूंगा और अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन स्टोरी में किक नहीं रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड, मैडी क्यों शर्मिंदा थी? बाय द क्वेश्चन पेगी आस्क्ड वांडा, पेगी के क्वेश्चन से जो कि वो अंडा से सॉरी वांडा से पूछती थी। इज शी आल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट, क्या वो वांडा को लाइक करती थी, और शी इज डिफरेंट, या वो अलग थी लोगों से? तो ये क्वेश्चन अभी आपको रिसेंटली इवेंचुअली मैं लास्ट पैराग्राफ में भी डिस्कस कर रहा था। द इंटेंशन ऑफ मैडी वाज नॉट टू हर्ट whom? वांडा पेट्रोन्स्की। आगे चलते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, अब एक नए दिन की शुरुआत है, अर्ली इन द मॉर्निंग। इट वाज द टाइम टू अराइव एट स्कूल, स्कूल जाने का समय है, सुबह सुबह की बेला है। दे हैड बीन लेट टू स्कूल, दे रिफर्स टू पेगी एंड मैडी, ठीक है, वो स्कूल जाने में लेट थी। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाती है। होता है जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं कि हमसे गलती नहीं हो रही है तो हमें खुशी होती है, ठीक है। शी वर्कड हर arithmetic problems absent mindedly, she was trying to solve, she was solving arithmetic, अंक गणित, absent mindedly means her mind was traveling somewhere else, she was not paying attention where she was, वो जहाँ थी वहाँ उसका दिमाग नहीं था। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note, वो एक नोट लिख रही थी, ठीक है। क्या नोट लिख रही थी? Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. Maddie was somewhere hopeless and she could not directly speak or Denny Peggy to ask 100 questions are related to 100 dresses. Peggy was present mindedly girl, and she was you can say very nutty girl. Okay, she likes to make questions, she likes to uh, have a talk with Wanda Petronsky, वो बात करना चाहती थी, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थी वो बच्ची में। लेकिन मैडी इस चीज़ को डायरेक्ट पैगी से कह नहीं सकती थी कि हे पेग, बंद करो यार, ये सब जो भी नाटक कर रही हो ये सब बंद करो, क्यों बेचारी को परेशान करती हो। कहीं ना कहीं मैडी इस चीज़ से प्रभावित थी, मैडी को ऐसा लगता था कि ये गलत करती है, झूठे उसको परेशान करती है बेचारी को। तो वो ये करेज, आई मीन शी
can't muster up the courage to speak directly to Peggy to stop the game of 100 races. But she tries to write a note, a letter, to give it to Peggy. Okay, and she would not be there while Peggy would going through the letter. Maybe Peggy would understand what Maddie wants. क्या वो चाहती है ये वो समझ जाए. आगे क्या होता है? When she finished, जब वो लेटर को फिनिश करती है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं. जब वो लेटर को फिनिश करती है, अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो वो उस टाइम अरिथमेटिक समाप्त कर चुकी होती है. वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद पैगी को लेटर लिखना शुरू करती है. सडनली शी पॉज्ड, वो रुक जाती है. शी shuddered, she pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. वो इमेजिन करती है, सोचने लगती है एक नई लड़की के बारे में जो कि पैगी का निशाना होगी, या पैगी अब उसका मजाक उड़ाएगी, और साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियां भी होंगी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. मे बी वो पूछे अ पर्सन डेलिबरेटली चूजन फॉर अटैक. टारगेट का मतलब यहाँ दिया हुआ है. हो सकता है वो पूछे कि वो ड्रेस कहाँ से पाई है. शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with. अब एक बहुत ही डीप थिंकिंग की बात है यहाँ पे. होता है यहाँ पे मैडी बेचारी इस चीज़ को सोचकर परेशान है कि हो सकता है कि मैं पेगी के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाना ही है कि पेगी को पसंद है वांडा से क्वेश्चन करना, और मैडी इस चीज़ को नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक पुअर लड़की थी, एक गरीब लड़की थी, और वो पुअर्स की बात को समझ सकती थी. ओके, व्हेन वी डू नॉट रिप्लेस आवरसेल्व्स एट समवन्स प्रॉब्लम वी कांट फील द सेम. हम वैसा महसूस नहीं कर सकते. तो मैडी बीइंग अ पुअर गर्ल वाज अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ वांडा पेट्रांस्की. उसकी बात को वो समझ सकती थी. आगे क्या होता है, वो ये सोचने लगती है कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ तो हो सकता है कल को मुझे वो अपना टारगेट बना ले. वो अगली लाइन में यही लिख रही है दैट शी वियर्स, वो जो पहनती है, मैडी जो पहनती है, वो हैंड मी डाउन कपड़ा किसका है? पेगी का है. पेगी उसकी माँ को वो कपड़ा दी होती है. होता है छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा इधर उधर लोग दे देते हैं दूसरे बच्चों को पहनने के लिए. जिनके पास पैसा होता है, एफर्ट होता है, वो मैनेज कर लेते हैं दूसरा और पुराना दूसरे को दे देते हैं. ठीक है, आगे. न्यू ट्रिमिंग्स so no one in room 13 would recognize it. Okay, new trimmings so no one in room 13 would recognize it. अब वो उस कपड़े की बात कर रही है. she is talking about that dress which Maddie wears. It is handed me down by Peggy. वो कपड़ा जो होता है जो मैडी पहन रही है वो पेगी का ही कपड़ा है. तो हो सकता है कि पेगी लड़कियों के बीच में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि मैडी ये कपड़ा तुम कहाँ से पाई हो. तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये तो तुम्हारा ही है. तो कहीं ना कहीं इसमें इंसल्ट है. शी वुड बी इंसल्टेड अमंग द गर्ल्स. वो बच्चियों के बीच में बेइज्जत हो जाएगी. तो इफ ओनली Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. ये सोच रही है अगर पेगी ही इस चीज को समझ सके, या वही निर्णय ले कि चलो वांडा से अब ये क्वेश्चन पूछना हम लोग बंद कर देते हैं. ओके, वी वुड नॉट बी आस्किंग मोर और एनफ क्वेश्चंस regarding this topic. Oh well, Mary ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. I mean, होता है ये एक्सप्रेशन है कि जब भी हम कुछ अच्छा फील ना करें या कुछ हम सोच रहे हो तो अपने बालों में हाथ को फेरते हैं. ठीक है, we pass our hands through our hair while we have so many thoughts in our mind. We want to push negative thoughts
अवे, तो ऐसा ही वो करती है। नाउ व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या होगा, क्या बदलाव आएगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स, धीरे धीरे वो लेटर को फाड़ देती है। द नोट शी हैड स्टार्टेड, जो नोट को वो लिखना शुरू की उसको वो फाड़ देती है। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, मैडी पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी सबसे पॉपुलर लड़की थी, बहुत ही लोकप्रिय थी, सारे लोग उसको जानते थे। यू कैन से मॉनिटर, ओके, एंड टैलेंटेड गर्ल आउट ऑफ क्लास। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। पेगी जो है वो, आई मीन शी डजंट डू व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत है वो पेगी नहीं करती है। शी थॉट, ऐसा मैडी का सोचना था। ठीक है, आगे चलते हैं। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school. जहाँ तक वांडा पेट्रॉन्स्की की बात है, she belongs to Boggins Height. Boggins Height जगह का नाम है, आप एक कॉलोनी कह सकते हैं, अगर अपने यहाँ को सोचें या कंपेयर करें तो कस्बा कह सकते हैं, बस्ती कह सकते हैं। बोगिन्स हाइट पर बिलोंग करने वाली वो लड़की थी, आई मीन वहीं से वो आती थी, और वो बिल्कुल अकेली थी स्कूल में। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बच्ची किसी से बात नहीं करती थी, ठीक है, बिल्कुल अकेले रहती थी। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। ठीक है, वो उसके कपड़े को याद करती है जो कि फेडेड ब्लू होता है। And she remembered another that was brilliant jungle green with red sash. और वो दूसरे कपड़े को जब याद करती है तो उसका कलर क्या होता है? रिमेंबर ब्रिलियंट जंगल ग्रीन। ब्रिलियंट जंगल ग्रीन का मतलब बहुत ही डार्क ग्रीन कलर का कपड़ा। एज वेल एज विद रेड शैश, उस पर लाल लाल शैश होते थे। अब देखिए, कॉम्बिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन, दोनों का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो ये दो तरह के कपड़ों को रिमेंबर कर रहे हैं। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, ऐसा लगता है जैसे कि क्रिसमस ट्री हो, ऐसा ही। द गर्ल हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, जो गर्ल है वो कहीं ना कहीं नॉट रियल, शी वॉज नॉट गेटिंग द एडमायरेशन रियली। इस चीज को लेकर मैडी काफी परेशान थी। मैडी वॉज थिंकिंग मोस्टली टू अबाउट द गर्ल वांडा पैटर्न, उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि बेचारी बोगिन साइड से बिलोंग करती है, बिल्कुल अकेले है यार्ड में, किसी से बात नहीं करती है, तो थोड़ा सा इसको दया आ रही थी। ठीक है, आगे क्या होता है ये कल हम पढ़ेंगे क्योंकि टाइम आपका ओवर होने वाला है। विश यू